is where the content, but how that content gets executed through right kind of a process so that it becomes a lifelong learning experience for the student. Okay, so that is what the essence of classroom. Sorry. So that is what the essence of classroom teaching is, working on both things, content as well as the process. But working in the process is more demanding, and more effort is involved. Okay, when we say, as I said earlier, the discussions don't just happen. Discussions have to be planned, and for that purpose, we need to focus on so many things. So many skills need to be developed. Okay, and only then we can make the discussions happen. So that's why we say it's more demanding and more effort is involved. But I think that is what the teachers are meant for. Like if we see our workload per week, okay, it is 16 hours. 16 hours, 16 घंटे होते हैं पूरे हफ्ते में. तो ये जो 16 घंटे होते हैं, मतलब अगर हम नॉर्मल जो वर्किंग आवर्स की बात करें, हम prepare a teaching plan, we should focus on the content development, we should focus on the process and all. Okay, so coming to the next part, that is what kind of skills are required for the teachers for execution of participant-centered learning process. Now, we are using the word skill here to emphasize much on this. But the second one is very, very important. Listening skills. You see, listening is not only a skill which a teacher needs. Rather, we say that listening skill is a life skill. We must develop ourselves as good listeners. And it carries a lot of importance in creating the right kind of discussion environment. Why? Because if we expect our participants, if we expect our students to discuss, then whatever they are saying, whatever point they are putting forward, if that is not listened properly, then they will not be motivated to participate in this. And for that purpose, we say, especially as teachers, though we are habitual of speaking, as teachers we are not habitual of listening, but in a discussion-based environment, listening skill is very, very important. And I often quote example, we are on a responsive position. So मैं ये एग्जाम्पल अक्सर शेयर करता हूँ महाभारत की, कि मतलब आई एम ए बिग फैन ऑफ दिस महाभारत सीरियल, जो भी मतलब इसमें अभी तक भी देखता हूँ. जब भी मेरे पास कभी फ्री टाइम होता है तो जरूर उसको देखता हूँ, बिकॉज आई पर्सनली फील कि दिस पर्टिकुलर होली बुक हैज गॉट लॉट मेनी लेसन्स. हर चीज में, हर इंस्टेंस में, हर इवेंट में कुछ ना कुछ सीखने को है. And those things are relevant even now. Okay, तो जैसे मैं मतलब ऑब्जर्व करता हूँ कि ये जो महाभारत में जब वो 5 पांडव जो होते हैं वो द्रौपदी को स्वयंवर में से जीत के लाते हैं, तो वनवास पे होते हैं वो लोग. तो जब वो मतलब जंगल में पहुंचते हैं, कुटिया में, तो उनकी मदर जो कुंती है वो किसी कामों में बिजी है. तो वो कहते हैं कि देखो माते आपके लिए क्या लाए हैं. तो वो बिना सोचे समझे, बिना उनकी बात पे ध्यान दिए वो कहती है 5 भाई बांट लो. तो वो देखो कितना एक डिफरेंट उसका वो मतलब सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में चेंज आ गया. क्यों आया वो? क्या वो इतनी बड़ी बात थी? बड़ी बात इसलिए थी कि वो
उनकी माता के द्वारा कही गई थी, एंड मदर वाज ऑन ए रिस्पॉन्सिबल पोजीशन. सो व्हेन शी इज इन अ रिस्पॉन्सिबल पोजीशन एंड शी हैज नॉट लिसन द थिंग्स प्रॉपरली, तो उसके बाद उसकी सारी जो देखो फॉल आउट कैसे होते हैं, है ना. तो टीचर जो होते हैं, टीचर भी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे होते हैं. सो वट एवर दे से, इफ दे डोंट लिसन द थिंग्स, लिसन टू द स्टूडेंट्स प्रॉपरली, तो उसकी भी रिफ्लेक्शंस काफी सीरियस होती है. तो अगर हम उनको लिसनिंग प्रॉपर नहीं करते हैं तो दे नॉट बी कीन टू पार्टिसिपेट. एक एग्जाम्पल मैं और अक्सर शेयर करता हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ. हम जापान की बात करते हैं कि जापानीज, यू नो, दे आर द बेस्ट ब्रीड, ना, कि एक छोटा सा कंट्री है, मतलब उस छोटे से कंट्री की आप देखो द वे दे हैव प्रोग्रेस्ड, द वे दे हैव डेवलप्ड, है ना. तो कोई वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है. नेचर इज ऑल्सो वेरी हॉस्टाइल टुवर्ड्स देम, बट स्टिल वन ऑफ द वेल्दीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. तो ये क्यों है, मतलब कैसे हुआ, हाउ दे बिकेम द वेल्दीएस्ट पीपल, इजंट द वेल्दीएस्ट कंट्री. तो सभी लोग एक बात कहते हैं कि उनके जो लोग हैं उनमें जो नेशनलिज्म है, उनकी जो क्वालिटीज हैं वो मैटर करती हैं. तो जहाँ से हमने अपना लेक्चर शुरू किया था, ग्लोबलाइजेशन वाली हम बात कर रहे थे 80s की, है ना. तो तब एक ना, मतलब यू आर फ्रॉम कॉमर्स एंड मैनेजमेंट साइड, तो अगर हमने कुछ मूवीज की जो हम बात करते हैं ना, कि एक लिस्ट आई थी एक बार इकोनॉमिक टाइम्स में, कि लिस्ट ऑफ 30 मूवीज विच एवरी कॉमर्स एंड मैनेजमेंट टीचर एंड स्टूडेंट दे मस्ट वॉच. तो उसमें जो सबसे पहली मूवी थी, टॉप रेटेड मूवी थी उसमें, वो थी एक मूवी जिसका नाम था गंग हो. तो गंग हो मूवी जो है वो मतलब वही लेट 70s अर्ली 80s वाले टाइम पीरियड की है. तो मतलब उससे भी आपको ग्लोबलाइजेशन का, कल्चर का काफी कुछ पता चलता है ना, लिसनिंग का काफी कुछ पता चलता है. तो क्या था कि एक इंस्टेंस था जिसमें क्या था कि कुछ अमेरिकन्स के पास कुछ प्रपोजल्स थी. They wanted to share it with the Japanese people, and they wanted Japanese to help on that. So उन्होंने मतलब जब आप, चलो एक बात बताओ, जब आप एक अमेरिकन बंदे को देखते हो या एक जापानीज बंदे को देखते हो, आपको क्या फर्क लगता है दोनों में? Are they same or they're different? Look wise or maybe their conduct, maybe जब लोग कैसे बिहेव करते हैं, कैसे बात करते हैं. Japanese are quite humble in their attitude and behavior, but Americans are quite arrogant and individualistic, I must say. थोड़े आउटस्पोकन से होते हैं, थोड़ा ज्यादा कम्युनिकेट करते हैं, है ना, ज्यादा बोलते हैं. और जो Japanese are quite humble and silent also. एग्जैक्टली. तो ये भी कुछ ऐसा ही था कि जब अमेरिकन ने अपनी प्रपोजल्स देनी शुरू की इन ए वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ स्टाइल, है ना, तो जापानीज वो प्रपोजल सुन रहे थे, है ना. तो थोड़ी देर बाद अमेरिकन को लगा कि मे बी ये जो जापानीज है ना, ये हमारी प्रपोजल्स में इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे हैं, क्योंकि ये कुछ पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, ये कुछ बता ही नहीं रहे हैं, ये कुछ पूछ ही नहीं रहे हैं, है ना. तो somehow the Americans got disheartened and वो नेगोशिएशन वहीं पे फेल हो गई. तो 2 दिन बाद जापानीज ने फिर अप्रोच किया अमेरिकन को कि आप लोग ऐसे क्यों अब्रप्टली बीच में, मतलब विद डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट आप छोड़ के चले गए. वो कहते कि हमें लगा आप लोग का इंटरेस्ट ही नहीं है हमारी प्रपोजल्स में, बिकॉज यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग एंड ऑल. तो वहां पे फिर पता चला, कहते जापानी सेड कि नो, we are very much interested in those proposals. Okay, why you develop that kind of feeling? वो कहते जी मतलब आपकी तरफ से कोई मतलब रिस्पॉन्स नहीं था ना. यहाँ पे वही बात आई कि जो लाइफ स्किल्स वाली, कि जापानीज दे आर ट्रेन्ड टू बी गुड लिसनर्स, एंड ए गुड लिसनर इज
कि when somebody is saying something to you, okay, first you listen, then you understand, then you respond. That is how the Japanese are tuned. Okay, that is how they are trained, and that's what they were doing, listening properly, then understanding, and then they thought they will respond. Okay, so Americans thought कि other way around. तो वही बात है कि why we praise the life skills of the Japanese. Okay, how come we can see the economic might which they have developed on account of, because of just their life skills. The reason for that is the good listening skill. One of the skill is the listening skill. So as a teacher, when we are inviting some kind of discussion with the students, then we must be good listeners. Whatever the students are saying, we must listen to them, understand them, because that is the best way to respect them. Because when you listen to someone, it's a great respect. Okay, and that is how they will be motivated to participate again. So listening skill is very, very important. Then another is bridging the gaps. Abhi, when I was talking about challenges, तो one of the participants said, आप लोगों में से एक मैम ने बात की थी कि हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं, कई बहुत रूरल एरिया से आते हैं, लड़कियां होती हैं, है ना, तो वो मे भी सरकारी स्कूलों से पढ़ के आते हैं, है ना, तो at times the classroom environment has so much of diversity that the knowledge level is not comparable. What Manpreet ma'am was saying, that was altogether different. The students which they're getting in Dharamshala, they are altogether different. So it usually happens in a classroom learning environment. Sir, this is I was telling you about this, and this is the scenario of Central University of Haryana, Mahendragarh. Not all the students, more than 50% students we are getting from all the corners of India. But the students who are coming from nearby places, they are pass out from the government schools in Mahendragarh, in Haryana, sir. Yeah, but that's why I'm saying diversity. Yeah, there is a diversity. हाँ जी सर, हाँ जी, है ना, तो नॉलेज लेवल में मतलब काफी ज्यादा जो है हम कहते हैं कि डाइवर्स होते हैं, किसी का ज्यादा है, किसी का कम है, isn't it? तो अब यहाँ पे जो बात जो मैं कहनी चाह रहा हूँ, एक छोटी सी आपके साथ इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट स्टोरी शेयर करूंगा, है ना। तो जैसे ना रजनीश ओशो का नाम आपने सुना होगा, वो कहते थे कि दुनिया क्या है ना, कि दुनिया कहते कि अगर मैं आपसे पूछूं, है ना, इंडिविजुअली हर एक की दुनिया अलग है ना, दुनिया सेम नहीं है सबके लिए, मेरी दुनिया अलग है, आपकी दुनिया अलग है, हर एक बंदे की दुनिया अलग है ना। क्यों अलग है? क्योंकि द वे वी हैव बीन ग्रूम्ड, द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट वी हैव, द काइंड ऑफ जीन्स वी हैव, ओके, ऑल दीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल in developing our understanding about the things, कि आपके आले दुआले जो चल रहा है उसके बारे में मतलब सेम सिचुएशन में बंदे जो है डिफरेंटली सोचते हैं, है ना। जैसे मैं जब रिफ्रेशर कोर्स, ओरिएंटेशन कोर्स लगा रहे थे ना शुरू की, वहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। पंजाब यूनिवर्सिटी में हमारा रिफ्रेशर कोर्स था, 97-98 की बात है। तो प्रोफेसर S.C. वैद्या, one of the renowned professor from Punjab University, he was our coordinator. तो क्या हुआ कि तब तो फिजिकली हुआ करते थे ओरिएंटेशन रिफ्रेशर कोर्स, तो अटेंडेंस मतलब शुरू का जो सेशन था ना, हाफ एन आवर वाला रिव्यू सेशन, तो अटेंडेंस सर्कुलेट हो रही थी, तो वो हर एक का ध्यान उस अटेंडेंस पे था कि मैं साइन कर दूं फटाफट। तो प्रोफेसर वैद्या गॉट लिटिल इरिटेटेड विद दैट। He said कि उन्होंने क्वेश्चन किया, कहते this attendance means what for you? तो एक बंदा बोला कि it means I am present, दूसरा कहता जी नहीं, it means I am physically present, okay? तीसरा बंदा बोला नहीं जी, it means 100 रुपीज, क्योंकि उस टाइम के ऊपर
हमें जो वो मिला क्या होता था ना, कोई ऑनरेरियम होता है, पता नहीं क्या होता है ना, पर डे का पार्टिसिपेंट को वो 100 रुपीज मिला करता था. सो एक क्वेश्चन आया, डिफरेंट लोगों का डिफरेंट आंसर था, है ना, क्योंकि हर एक बंदे का सोचने का तरीका जो है वो अलग है. तो बिकॉज डाइवर्सिटी है ना. तो एक छोटी सी आपके साथ में मैनेजमेंट स्टोरी शेयर करता हूँ. दिस स्टोरी इज अबाउट ब्रिटिश कोलंबिया एंड अमेरिका. तो क्या था कि ब्रिटिश कोलंबिया में से कुछ लेदर बैग मैन्युफैक्चरर्स थे, लेदर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते थे वो. दे वर एक्सपोर्टिंग देयर लेदर बैग्स टू अमेरिका. बट अमेरिका में वो जो लेदर बैग्स थे, दे वर नॉट getting good sales, they were not competitive in the American markets. तो उन्होंने क्या किया कि मतलब द मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने सोचा कि let us get some kind of marketing research done कि why our leather bags are not competitive in the US market. तो जब उन्होंने वो सर्वे वगैरह करवाया, रिसर्च करवाई, they came up with two findings, the consultants. Those findings were कि एक तो जो क्वालिटी ऑफ लेदर यूज होता है, जो ये ब्रिटिश कोलंबिया से लेदर बैग्स जाते हैं, दैट्स नॉट ऑफ ए वेरी गुड क्वालिटी. और दूसरी बात वो कहते हैं कि थोड़ा सा उसका प्राइस जो है वो थोड़ा हाई है. तो ये बात जब लेदर बैग मैन्युफैक्चरर्स के साथ शेयर की गई, तो लेदर बैग मैन्युफैक्चरर्स कहते हैं कि जी दिस इज नॉट आवर फॉल्ट, कि लेदर बैग अगर क्वालिटी ऑफ लेदर इज नॉट गुड, तो दैट इज बिकॉज ये जो टैनरीज हैं, टैनरीज होती हैं जो डेड एनिमल्स की स्किन को टैन करके लेदर में कन्वर्ट करती हैं. तो ये देखा ये द फॉल्ट लाइज विद द टैनरीज because they use very heavy chemicals to tan the skin hides of the animals. That is how the skin gets damaged. And second is that because tanneries वो बड़े सारे chemicals, बड़ा सारा वो stinky सा kind of environment होता है वहाँ पे. तो गवर्नमेंट कोई सब्सिडीज भी देती है जो लोग वो काम करते हैं. तो because of subsidies, the cost, they're not bothered about the cost. That is how the cost goes up. Okay. So, जो leather bag जो consultants थे, they went to the tanneries people and asked them कि भी आप why don't you take care of the skin hides of the animals? Why don't you take care of the cost? है ना, क्योंकि आप गलत leather आगे जाता है तो leather products अच्छे नहीं बनते हैं. तो tanneries people said कि this is not our fault. The fault lies with the slaughterhouses and the butcheries from where we are getting these skin hides of the dead animals. क्योंकि वो जो butcheries या slaughterhouses में वो उनको लगता है कि for rest of the part of the dead animal is more profitable, so they are more bothered about that. But मतलब जो skin वाला पार्ट है उसके ऊपर वो ज्यादा ध्यान नहीं देते. दैट इज हाउ दे डैमेज द स्किन. तो लेदर बैग दे कंसल्टेंट्स जो हैं वो इनके पास जाते हैं, स्लॉटर हाउसेस, बुचरीज के, भी आप क्यों नहीं ध्यान रखते ये वो कहते दिस इज नॉट आवर फॉल्ट. द फॉल्ट लाइज विद द पीपल लिविंग अप कंट्री, जो गांव में लोग रहते हैं जहाँ से ये सब आती हैं, मतलब गायें या भैंसें हमारे पास आती हैं, तो वही उनकी स्किन खराब हुई होती है, वही ऐसी खराब स्किन नहीं आती है हमारे पास. तो ये कंसल्टेंट्स दे वेंट टू द पीपल लिविंग अप कंट्री इन द विलेजेस एंड ऑल, दे आस्क्ड देम कि क्यों भी आप क्यों नहीं उनकी ध्यान रखते उनकी स्किन का, कि वो लेदर प्रोडक्ट्स बनने होते हैं ये वो कहते हैं दिस इज नॉट आवर फॉल्ट, आवर काउज आर स्टूपिड. They said, what do you mean your cows are stupid? वो कहते जी वो दे जस्ट स्क्रैच देयर स्किन विद द बार्ब्ड वायर अराउंड, जो तार तूर लगाई होती है उन्होंने, वो उसके साथ अपनी वो मतलब स्किन को स्क्रैच करती रहती हैं टू डिफ्लेक्ट द फ्लाइज, मक्खियां उड़ाने के लिए. सो दैट इज हाउ द स्किन गेट्स डैमेज्ड. नाउ वन प्रॉब्लम के क्वालिटी ऑफ लेदर इज नॉट प्रॉपर. ठीक है, तो ये अगर सारी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को देखें तो क्या हम कहेंगे काउज आर स्टूपिड, दैट्स व्हाई
the quality of leather bags is not proper? What you will say? क्या प्रॉब्लम कहाँ पे है इसमें? There's no problem. Cows are stupid. That's why the quality is poor. Am I audible? Hello. Yes, sir. Yes, you're audible, sir. Okay. What do you think? Where is the problem? I'm trying to figure out the whole example to find out the problem, but maybe the way we take the things or the subjectivity is playing a great role in this. जैसे आपने वर्ल्ड वाला एग्जाम्पल दिया ना सर कि हर एक की दुनिया अलग होती है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि हर बंदे का पर्सपेक्टिव रोल प्ले कर रहा है. पर्सपेक्टिव रोल. उसके पर्सपेक्टिव में वो जो उसको सही लगता है वो उसका आंसर दे रहा है. So subjectivity is, I guess, the major problem in this communication, or in other words, the gap in the communication. Don't you think something wrong with the society, because everybody is just trying to passing the buck to others is always a thing which has played a role in society. But yes, obviously. Yeah, if you ask a sociologist will say that extreme kind of mistrust exists in the society. Trust and mistrust. If you ask a management expert will say problem lies in the supply chain. The supply chain management has to be proper, isn't it? Yeah. If you ask an economist may say... He'll say that, the cost can be a problem, or procurement input. Yeah, subsidy is also a problem, because why subsidies are given? That's what maybe the perspective of a person or his mental ability to a particular field is playing a role. Yes. And if you ask some NGO people, NGOs होती हैं, वो कहेंगे कि जी the problem lies with the height of the barbed wire. Let us raise the height of the barbed wire so that cows are not in a position to scratch their skin, isn't it? So one problem, different people. Now I figure out that my answer was like that only because I love teaching and doing qualitative research and communication. So that's why my answer was like that only, that the subjectivity is playing a role, or communication gap is playing a role. Yeah. So you're putting my answer too. Yeah. So one problem, different people, different perspectives, and all of them in one way or the all of them are correct in one way or the other, isn't it? Because economist is also correct, sociologist is also correct, then the management expert is also correct, NGO wala is also correct. So class may be, when we have got a diversity of the students, okay, they come, if you raise a particular issue, if you flag a particular issue, they may come up with the different perspectives. And all those perspectives may be correct in one way or the other. May be correct, I'm saying. So, because the students are coming with the different backgrounds. तो यहाँ पे जो टीचर की अप्रोच होनी चाहिए, that should not be a binary approach. What is binary? 2 8 0 or 1. 0 and 1, yeah. 0 and 1 कि ये correct है, ये incorrect है ना? तो टीचर की अप्रोच बाइनरी अप्रोच नहीं होनी चाहिए. You should not say कि ये इन लोगों ने ठीक कहा है, इन लोगों ने गलत कहा है. No. When people come with a different perspective, they must have some reasons why they have said this. Okay, so for this purpose, we say that teacher ka role to create a good discussion environment is to bridge the gaps. Okay, when students are coming with a different perspective, wherever those gaps are, so our role is to bridge those gaps. And how do we bridge those gaps? What a teacher can do for that? So for that purpose,
a teacher has to be well read. He should not be living in a shell, having a limited understanding of the things, because in social sciences, especially for subjects like us, there is nothing called black and white. When we say when you get more matured with the things, everything is in gray. Okay, so you must try to bridge the gap, because if you follow a binary approach, then the students will be discouraged to participate in the discussions. Then is time management. Time is a very, very important component these days. We must manage our time well. So I was associated with Infosys around 20 years back. तो उनका एक कैंपस कनेक्ट प्रोग्राम था फॉर सॉफ्ट स्किल्स डेवलपमेंट. तो आई वाज ट्रेन्ड फॉर दैट इन द इन्फोसिस कैंपस. तो वहाँ पे क्या था कि मे बी इन ए डे हम कई बार 20-20, 25-25 एक्टिविटीज करते थे. कोई रोल प्लेस, कोई केसेस, कोई तो एवरी एक्टिविटी यूज्ड टू हैव ए फिक्स टाइम कि ये एक्टिविटी 5 मिनट में होगी, तो फैसिलिटेटर विल इंश्योर कि 5 मिनट्स में हो जाए. अगर कोई एक्टिविटी 25 मिनट्स में होनी है, देन द टीचर और द फैसिलिटेटर विल इंश्योर कि 25 मिनट्स में हो जाए. तो a teacher must earmark the time for each and every step of that activity. जैसे मैं आपको बात कर रहा था कि जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की जो केस स्टडीज है, तो एज ए टीचर वो सारी केस स्टडी हमें अवेलेबल है. वी कैन जस्ट डाउनलोड देम फ्री ऑफ कॉस्ट. वी नीड टू रजिस्टर ऑन ए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल वेबसाइट एंड दे विल गिव अस द एक्सेस फॉर दैट. Because if our name appears on the website of our university or college, तो वहां पे क्या है कि हर एक केस स्टडी के साथ there is a teaching note. What is that teaching note? Which is exclusively meant for the teacher. अब teaching note में there is a detailed explanation या जो sequence of events होना चाहिए एक केस डिस्कशन में, वो सारा कुछ उसमें मेंशन होता है. कि जैसे जब ये केस स्टडी दी जाएगी तो नॉर्मली स्टूडेंट ये बातें डिस्कस करेंगे. आफ्टर दिस हाउ मेनी मिनट्स यू शुड इंट्रोड्यूस दिस पॉइंट ऑफ डिस्कशन. फिर वो ऐसे डिस्कस करेंगे. देन आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स आप ये वाला पॉइंट वहां पे इंट्रोड्यूस कर दो. सो दैट एज आई सेड कि डिस्कशंस डोंट जस्ट हैपन, डिस्कशंस हैव टू बी प्लान्ड. तो वो सारी निटी-ग्रिटीज जो हैं वो टाइम मैनेजमेंट इज. तो वहाँ मतलब वो जो हमारे कोऑर्डिनेटर थे वो पहले ही आगे खड़ा हो जाता था. जब देखता था कि पूरे सेकंड वाली सुई पे भी 9 बज गए, तो ही विल स्टार्ट द सेशन. ओके, तो अगर उसको लग रहा है कि कोई रिसोर्स पर्सन अपने टाइम से ज्यादा हो सकता है टाइम ले ले, तो उसने पहले ही जैसे 15 मिनट पहले ही जाके वहां पे खड़े हो जाना है. तो रिसोर्स पर्सन जैसे सारे फॉर्मर डायरेक्टर्स आईआईटीज के थे या वाइस, तो उनको लगता होगा अच्छा आप बताने वाले हो कि मैं बस करूं. कहते नहीं मैं नहीं आपको कुछ कह रहा, बस मैं तो मतलब टाइम सिग्नल ही देना था कि बस another 10 minutes, another 15 minutes, or another 5 minutes with you. So we must keep a watch on our, we must keep a eye on our watch to manage the time properly, and we must earmark the time for each and every activity. Questioning. किसी भी अच्छी डिस्कशन में questioning is a very, very important aspect, and it plays a very, very important role. Because the right kind of questioning to the right individual at the right time set the ball rolling in the right direction. And ये भी कहा जाता है कि intelligence of a person is not judged from his answers. Intelligence of a person is judged from his questions. Okay? So उसके लिए अगर हमने एक अच्छा डिस्कशन मतलब environment create करना है, एक अच्छा डिस्कशन outcome लेके आना है, then we must know what type of question should be asked to which student and at what point. अब आप कहोगे कि ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन किसको पूछना है.
आजकल जैसे हमारे न्यूज चैनल्स हैं, वैसे तो उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि मतलब lot of bad things about our media is being said these days, and to some extent उतनी अच्छे आउटकम्स इन सब डिस्कशंस के नहीं होते हैं. बट अगर आप जो हमारे कुछ सीजन्ड एंकर्स हैं, एंकर्स लाइक प्रणॉय रॉय, देन इवन बरखा दत्त, ओके, तो ऐसे कुछ जो बड़े एक्सपीरियंस्ड एंड सीजन्ड काइंड ऑफ एंकर्स हैं, आप अगर उनके वो देखो, अपना प्रोग्राम देखो, जब वो कुछ डिस्कशंस को मतलब एंकर करते हैं, तो आउटकम ऑफ दोज डिस्कशंस आर ऑलवेज बेटर, ओके, बिकॉज दे नो कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज टू बी आस्क्ड टू whom एंड एट व्हाट टाइम, ओके. सो ऐसे ही हमारे जो स्टूडेंट है, आपको स्टूडेंट के ऊपर ये बात कैसे एप्लीकेबल होती है. मैं जैसे आप एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ करता हूँ. व्हेन आई वाज अंडरगोइंग ए ट्रेनिंग एज ए सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर, तो वहां पे क्या होता था कि अगर जितनी भी एक्टिविटीज करवानी है, ऐसा नहीं कि जो हमारे फैसिलिटेटर थे या टीचर थे वो रैंडमली आके किसी को भी कह देते जी आओ जी ये एक्टिविटी करो ना. उनको पहले से डिसाइड करके आते थे, सोच के आते थे कि कौन सी एक्टिविटीज, कौन सा क्वेश्चन किससे पूछना है. ओके, इसमें छोटी सी एक अपनी पर्सनल एग्जांपल शेयर करता हूँ. एक दिन हमारी जो सेशन था, दैट वाज ऑन टोन, के रोल ऑफ टोन इन कम्युनिकेशन. नाउ वी ऑल नो कि टोन प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कम्युनिकेशन. कि जब आप कम्युनिकेट करते हो, देयर मस्ट बी वेव्स इन कम्युनिकेशन, because at times you emphasize more, at times you emphasize less. अगर आप एक ही पिच पे बोले जाओ तो वो तो लोरी बन जाता है, वो that's not an effective way to communicate. तो जैसे उस दिन क्या हुआ, मतलब अक्सर ऐसे ही होता था, कभी किसी को जैसे टोन के ऊपर करना था, तो जैसे that role play was given to me, तो फैसिलिटेटर आई, तो पहले वेयर इज मंजीत, ओके. तो क्योंकि उसको मतलब पहले से डिसाइड होके आता था, उनको पता होता था कि इस रोल को कौन जस्टिफाई करेगा, ओके. सो फॉर दैट पर्पस, इफ यू वांट टू से कि कौन सा क्वेश्चन किससे पूछना है, फॉर दैट पर्पस यू मस्ट नो योर स्टूडेंट वेल. यू मस्ट नो कि कौन सा स्टूडेंट किसी क्वेश्चन को कैसे जवाब देगा, ठीक है. सो दैट इज अनदर स्किल विच यू नीड टू वर्क अपॉन. Stay focused all the time. Don't allow the discussion to deviate from your main topic, because there is always a tendency, जैसे मनप्रीत मैम भी बोल रहे थे कि बड़े इधर उधर के questions, distractions, है ना. So this is also a skill which a teacher must develop, कि how to stay focused with regard to our discussion by not allowing the deviation from that topic. Then is the wrap-up skills, कि हर एक जो चाहे वो केस स्टडी है, चाहे वो एक्टिविटी है, वी ऑल नो कि कई बार बहुत से रोल प्लेज, बहुत से एक्टिविटीज, देयर इज लॉट ऑफ फन, है ना. तो यहाँ बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना. तो ऐसा लगता है कि कई बार स्टूडेंट्स दे डेवलप ए काइंड ऑफ फीलिंग कि टीचर ने अपनी जॉब इजी कर ली, कि सारा काम हमें दे दिया, टीचर क्या कर रहा है, आराम से बैठा. सो दैट काइंड ऑफ फीलिंग शुड नॉट गेट डेवलप्ड, बिकॉज लास्ट 10 to 15 minutes for every this discussion oriented class should be on the wrap up part. And wrap up should be कि ये जो भी डिस्कशन हुई उसमें how to join the dots of those discussions. अगर कोई पॉइंट रह गए to try to incorporate those points, and if those discussions are related with some kind of academic thing, academic principle या कोई method या किसी के साथ link करना चाहते हो, तो try to do that as well. So last 10 to 15 minutes should be on the wrap up, which should be again a quality time to make your presence felt amongst your students, कि ये जो सारा कुछ किया इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, व्हाट वर द न्यू डिस्कवरीज फ्रॉम दैट डिस्कशंस, ओके.
अनदर इज मोटिवेशन. जैसे आप मनप्रीत मैम बोल रहे थे कि जो ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन टच का जो रोल है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है. मतलब टीचर को क्यों नहीं रिप्लेस किया जा सकता? बिकॉज द वे ए टीचर कैन मोटिवेट, दैट कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंज in the students. As head of the department, I always used to request my teachers that in a class, minimum 30% of your time you must spend on motivating the students. Okay, तो ये एक बड़ी important मतलब जैसे हम पहले भी पढ़ा करते थे ना कि a good teacher teaches, a better teacher explains, but the best teacher inspires or motivates. So you must motivate your students to commit them for their learning and development. मतलब कई बार हमें लगता है कि इन चीजों का क्या रोल है ना? अगर हम उनको थोड़ी बहुत मोटिवेशन दे भी दें, कौन सा बच्चे सुनते हैं? तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ एक वन ऑफ माय एक्सपीरियंस विद रिगार्ड टू दिस. कुछ साल पहले, अराउंड 10 years back, I used to go to Doordarshan as a resource person for some kind of live interviews and all, है ना? तो वो कहते थे जी कैरियर काउंसलिंग के लिए बच्चों को थोड़ा सा मतलब लाइव चैट जो होती है या लाइव क्वेश्चन आंसर्स आप कर दो, है ना? तो नॉर्मली मेरे को बड़ा अर्ली मॉर्निंग, अगर जलंधर जाता था मैं तो अर्ली मॉर्निंग जाना पड़ता था. तो 7, 7:30 तक वहाँ पे वो प्रोग्राम होता था. तो मैंने एक बार उनके डायरेक्टर को ये कहा, मैंने कहा जी आप इतनी जल्दी सुबह बुला लेते हो, आपको लगता है कि ये जो हम सारा करते हैं किसी को कोई कोई बच्चे से कोई फर्क पड़ता है? कि कौन है जो आजकल दूरदर्शन देखता है? तो वो गेव अ वेरी इंटरेस्टिंग आंसर. ही सेड कि अगर आपकी बातों से कोई एक बच्चा या 2 बच्चे को भी हेल्प हो गई ना, तो आपका यहाँ आने का जो पर्पस है वो मतलब सर्व हो गया. सो यू सी, ये दिस यूज्ड टू बी द एक्सपेक्टेशन लेवल, है ना? वैसे ही अगर आप मोटिवेट करते तो हो सकता है कोई 1-2 बच्चे आपकी जो बातें मतलब सुन के कुछ मोटिवेट हो जाए, उनकी लाइफ में कुछ चेंज आ जाए, कुछ लाइफ बन जाए, है ना? सो दिस मस्ट बी डन. persuade them for their better learning and development, है ना? Then try to empathize with them, know their hopes, know their fears, know their sentiments, है ना? अगर आप ये सोचो कि मैं तो PhD हूँ, मैं तो मतलब सीनियर प्रोफेसर, इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, ये स्टूडेंट्स का तो लेवल ही नहीं है ना? इनको क्या समझाना, ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं, है ना? तो वो नहीं बात बनती. मतलब इफ योर कंट्रीब्यूशन एज ए टीचर विल बी कि अगर आपका लेवल बहुत ऊंचा है, मैं कहता हूँ, है ना, स्टूडेंट का लेवल अगर हम कहते हैं बहुत नीचा, आप अगर वहां से आप उस स्टूडेंट को थोड़ा सा भी ऊपर आपने रेस कर दिया, दैट इज योर कंट्रीब्यूशन, दैट इज योर अचीवमेंट. सो ट्राई टू एम्पैथाइज विद देम, नो देयर होप्स, नो देयर फियर्स, ओके, एंड अकॉर्डिंगली, yeah, so try to be little social with them as well. So these are some of the skills which I wanted to talk about for the teachers for execution of participant-centered learning. Now let's come to the next part. That is skills required for the teacher, for the students for execution of participant-centered learning. क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि जो बर्ड्स होते हैं, if a bird has to fly, then both the wings should work. दोनों पर जो हैं वो इकट्ठे काम करते हैं. तो ऐसे ही whatever a teacher is doing, ठीक है, तो अकेले टीचर के काम करने से बात नहीं बनेगी. स्टूडेंट जो है उसको भी कुछ ना कुछ नई स्किल्स, कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, ठीक है, in order to get the best from this participant-centered learning. Now, what are those? I'll briefly touch upon that. Now, we as teachers, we can always sensitize our students to work on these in order to create a better learning environment. Now, what are those?
First is assuming and sharing responsibilities. देखो मतलब अक्सर ना मेरे को जब मैं when I came back from my foreign assignment, तो मेरे को शुरू में बच्चे अक्सर ये पूछा करते थे कि जी वो बाहर वाले बच्चे और इधर वाले बच्चों में क्या फर्क है. तो मेरा स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स ये होता था कि दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल, कि उनको जो भी काम दिया गया, जो भी टास्क दिया गया है ना, तो वो उसको बड़ा अच्छे से करते थे, है ना. अगर आप उनको केस स्टडी दिए आपने, तो यू विल फाइंड कि दे आर नॉट इनटू एनी काइंड ऑफ सोशल लोफिंग, दे आर डिस्कसिंग द थिंग्स प्रॉपरली. ओके, अगर किसी को सीआर का रोल दिया, जैसे क्लास रिप्रेजेंटेटिव का रोल हुआ करता था, तो मेरे को याद है कि अगर 8 बजे क्लास है और 8:05 हो गए, तो सीआर आपके रूम में आ जाएगा कि जी आप अभी तक क्लास में क्यों नहीं आए, है ना. बड़े तरीके से वो बात करते. तो जो क्लासरूम कंट्रोल है ना, जैसे एक और आपके साथ मैं एग्जाम्पल शेयर करता हूँ कि जब हम देखते हैं ना, फर्क देखते हैं इंडियन सिस्टम में और फॉरेन सिस्टम में. तो हमारे एक कोलीग थे, उन्होंने ना एक बार छोटा सा आर्टिकल लिखा न्यूज़पेपर में ऑन द ईव ऑफ टीचर्स डे. हम सबको पता है कि 5 सितंबर को हमारे यहाँ टीचर्स डे मनाया जाता है ना. तो दैट इज अ स्पेशल डे फॉर द टीचर्स, के बच्चे मतलब विश करते हैं एंड ऑल. तो उसने अपनी कुछ थॉट्स शेयर की ऑन द ईव ऑफ टीचर्स डे. तो उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस बताया, एंड दैट एक्सपीरियंस वाज कि वो कहते कि मैं अपना एक शॉर्ट टर्म प्रोग्राम लगाने कहते मैं अमेरिका गया. तो वहाँ पे क्या था कि कहते कि हम 20-25 लोग थे, तो 3 मंथ्स का वो प्रोग्राम था. एंड उनके एक कोई टीचर थे जो मतलब बड़ा अच्छा पढ़ाते थे, वो कहते. तो and all of them used to rate him as number 1 teacher. तो कहते एक बार क्या हुआ कि एक मंडे को सुबह 8 बजे क्लास थी. तो वो टीचर जब आए, तो जब उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, तो everybody could make out within 10 to 15 minutes कि today something is wrong, कि आज वो टीचर उतने इफेक्टिव नहीं है जैसे ही यूज्ड टू बी, है ना. तो कुछ देर सुनते रहे कहते जब आधा घंटा 35-40 मिनट हो गए, तो एक नोट सर्कुलेट किया बाकी स्टूडेंट्स ने क्लास में. इनके पास भी पहुंचा वो नोट क्या था कि किसी ने कैलकुलेशन करके बताई. उसमें वो कैलकुलेशन क्या थी कि मतलब हम इतने पार्टिसिपेंट्स हैं, 25 पार्टिसिपेंट्स हैं, और इतनी हमने इतने डॉलर्स फीस पे किया है, और टोटल इतने आवर्स टीचिंग कॉन्टेक्ट्स के बनते हैं, है ना. तो ये टीचर ने हमारा 1 घंटा वेस्ट किया. सो लेट अस पुट ए नोट टू द एडमिनिस्ट्रेशन कि दे शुड रिफंड अस दिस मनी, बिकॉज दिस इज द टाइम व्हिच ही हैज वेस्टेड, व्हिच वाज नॉट ए प्रोडक्टिव टाइम. ओके, तो बात क्या थी, कहते कि जो टीचर था वो भी बेचारा मतलब ह्यूमन बीइंग ही होता है. बाद में कहते पता चला कि वो गैम्बलिंग या उसमें था, हॉर्स रेसिंग में बड़ा पैसे पूसे हार गया. तो अगले दिन वो ही वाज नॉट नॉर्मल, दैट्स व्हाई ही कुडंट डिलीवर इन द क्लास, है ना. बट जस्ट सी कि हाउ मच कमिटेड एंड हाउ मच रिस्पॉन्सिबल the students are towards their learning and development. Okay, so we need to sensitize our students on this. Okay, if whatever time they spend in the classroom, okay, they must share control. They must be responsible for their learning and development. Another is, to create a good discussion environment, there should be exchange of ideas, rather than selling ideas or competing for the ideas. Normally ये होता है, हम कहते हैं कि क्लासेस में जब डिस्कशंस होती हैं, those discussions are just like a fish market or a vegetable market where people are just shouting, they're not listening to each other, or
they are not trained to discuss the things in a better manner so that they can have a better outcomes from that discussion. तो एक छोटा सा और एग्जाम्पल अपनी लाइफ का आपके साथ शेयर करता हूँ about this particular point only, that is exchange of ideas. Yeah, is there any question? Yeah. Hello. No question, sir. Okay. तो ये क्या था कि ये एग्जाम्पल 94-95 की है when I started my teaching career. So at that point of time, MBA used to be a very prestigious degree. Okay, very few opportunities, very few seats were there, and large number of students used to compete for the admission to the MBA. तो क्या था कि आपको भी पता है कि वो पहले टेस्ट हुआ करता था, फिर ग्रुप डिस्कशन, फिर इंटरव्यू. तो ग्रुप डिस्कशन प्रोसेस चल रही थी. तो मतलब नॉर्मली हमें पता है कि ग्रुप डिस्कशन 30 मिनट्स का स्लॉट होता है कि 8-10 बच्चे का बैच होता है. पहले हम उनको एक टॉपिक देते हैं, 5 मिनट देते हैं टू प्रिपेयर दैट टॉपिक. देन नेक्स्ट 20 मिनट्स आर फॉर डिस्कशन एंड लास्ट 5 मिनट्स आर फॉर कंक्लूजन एंड ऑल. तो तब क्या हुआ कि एक जो हमारा कैंडिडेट था, हमने एक टॉपिक दिया. टॉपिक वाज ऑन क्रिकेट, कुछ क्रिकेट के ऊपर, क्योंकि हमें पता है कि क्रिकेट इज रिलीजन इन इंडिया, एवरीबडी नोज समथिंग अबाउट क्रिकेट. तो कुछ ऐसा ही टॉपिक दिया. बट एक कैंडिडेट ऐसा था जिसको क्रिकेट के बारे में कुछ पता नहीं था. तो क्योंकि वो बाद में हमारा वो स्टूडेंट बना, तो उसने ये शेयर किया हमारे साथ. तो वो कहता कि जब मेरे को टॉपिक दिया गया, वो था पैक जो है ना, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, वन ऑफ द रेप्यूटेड कॉलेज, वहाँ का वो इंजीनियर था. ही सेड कि जब टॉपिक दिया गया तो कहता कि मेरे को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था. बट यू सी व्हाट हैपेंड इन दैट डिस्कशन प्रोसेस, कि जब हमने कहा 5 मिनट बाद कि यू कैन स्टार्ट द डिस्कशन, तो दिस स्टूडेंट, दिस कैंडिडेट, ही वाज द वन हु इनिशिएटेड द डिस्कशन. कैसे? वो कहता जी देखो ये टॉपिक मिला है ना हमें, वी आर 8 पार्टिसिपेंट्स हियर, है ना. Let us give 2 minutes to each other. Let us not criticize each other. Let us not interrupt each other. Let us, like this, he framed the rules of the game. And he opened the discussion with the very, very good communication skills. तो सबको लगा कि बड़ा पॉजिटिव इमेज बंदा छोड़ के गया कि देखो उसने सारे जो रूल्स हैं कि हम कैसे कंडक्ट करेंगे अपने आप को, उसको उसने मतलब अनफोल्ड किया. तो उसके बाद लोगों ने अपने अपने पॉइंट्स देने शुरू किए, पर्सपेक्टिव देने शुरू किए. तो ये आराम से उनको नोट करता रहा, और लास्ट में उन सब पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर ही ब्यूटीफुली समराइज्ड एवरीथिंग, है ना. एंड ही कुड इम्प्रेस द जजेस ऑन द बेसिस ऑफ दैट. सो बस कि डिस्कशन में एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, क्योंकि ही क्रिएटेड समथिंग आउट ऑफ नथिंग. कि अगर हम कहें कि जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, या उसने ये कहा है, मैं उसकी कंपटीशन में ये कहूंगा, फिर तो वो दैट इज नॉट ए गुड डिस्कशन एनवायरनमेंट. सो वी नीड टू सेंसिटाइज अवर स्टूडेंट्स ऑन दिस कि focus should be on exchange of ideas rather than competing for the ideas, and we should be open to the others' perspectives as well. Now, another important thing is, which we find lacking is the team ability skills. क्योंकि कोई भी जो एक्टिविटीज होती हैं, है ना, स्टूडेंट्स को हम देते हैं, we expect them to work as a team so that they can work together. because जब organizations में भी जाते हैं, there you are not expected to work alone. You are supposed to work as in a team. Okay, तो टीम एबिलिटी स्किल्स के ऊपर जो सेंसिटाइजेशन है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है. जैसे हमारे एक टीचर कहा करते थे कि ब्रेन वाइज एक इक्वेशन वो समझाया करते थे कि ब्रेन वाइज 1 इंडियन इज बेटर देन 1 जापानीज, बट 2 जापानीज आर बेटर देन 3 इंडियंस. हम कहेंगे ये क्या मैथमेटिकल इक्वेशन है?
if one Indian is better than one Japanese, how come two Japanese can become better than three Indians? तो यहाँ पे टीम वर्क का इशू आता है कि when they join hands together, their collective performance goes up. When we join hands together, our performance comes down because of the poor team ability skills. Okay, तो एक छोटा सा slide show है. Let me share it with you. आपने देखा होगा ये birds, migratory birds जो हैं, those who travel from Siberia, from North Pole, है ना, toward this part of the world during in the pre-winter season. ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, आपको है आइडिया? Thousands of kilometers. ये कितने किलोमीटर ट्रेवल करते हैं? ऑलमोस्ट Thousands, sir. Thousands से भी ज्यादा. Around 20,000 kilometers the distance they cover, है ना? और वो खुद ही फ्लाई करके आते हैं, उनको कोई जहाज छोड़ने तो नहीं आता, है ना? तो वो चेन में चलते हैं ना? हाँ जी, चेन में चलते हैं. तो आपने देखा होगा कि they always fly in a V formation like this, है ना? तो when they fly in V formation, है ना, क्यों चलते हैं वैसे? Why they fly in a V formation? इसको कुछ पढ़ा तो है मैंने, कभी साइंटिफिक होता है कि पहले जो फर्स्ट वाला बर्ड होता है वो फोरसी करता है कि आगे कैसा वेदर है या आगे क्या आ रहा है, कुछ ऐसा होता है कुछ. Not sure. Okay, anybody else? Sir, the bird in the middle, he takes the lead. वो लीड करता है, फिर अगर जब वो थक जाता है तो वो पीछे आ जाता है, देन द सेकंड बर्ड लीड करता है. सर मैंने ये पढ़ा है इसके बारे में. ओके, एनीबॉडी एल्स? सर माइग्रेटरी बर्ड्स जो है वी शेप में फ्लाई करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि माइग्रेटरी बर्ड्स को लंबा डिस्टेंस कवर करना होता है, तो धीरे धीरे करके शिफ्ट्स में चेंज करते हैं. फर्स्ट बर्ड जब थक जाता है तो वो पीछे आ जाता है और फिर नेक्स्ट बर्ड आगे चला जाता है. नहीं, वो तो ठीक है आपकी बात, पर ऐसे शिफ्ट करने से क्या फर्क पड़ता है? मे बी मोटिवेशन प्लेज अ रोल. एनर्जी सेविंग. हाँ जी, save their energy. Pardon? To save their, to conserve their energy. To conserve their energy. To conserve or सर save उससे their थकान energy. भी कम होती है. जो फर्स्ट बर्ड है वो जो वी शेप में जो बाकी के बर्ड्स हैं उनको. हाँ जी, हाँ जी. हेलो, हेलो, am I audible? Yes sir. यस सर. यस रोमा मैम, आप कुछ कह रहे थे, प्लीज अपना व्यू रखें. तो जब ये वी फॉर्मेशन में फ्लाई करते हैं, इट्स एरोडायनेमिक शेप, और एरोडायनेमिक शेप में जो रेजिस्टेंस टू द एयर है दैट गेट्स मिनिमाइज्ड. तो ये फिजिक्स का एक प्रिंसिपल है. तो उसमें क्या है कि जब व्हेन दे फ्लाई इन दिस फॉर्मेशन, मैक्सिमम एफर्ट इज बाय द लीडर बर्ड जो फर्स्ट पे है, और जो सबसे लास्ट में उसका एफर्ट सबसे कम लगता है. एक एरोडायनेमिक शेप बन जाती है. ओके, सो द होल फ्लॉक इंक्रीजेस द फ्लाइट एफिशिएंसी बाय 71% कंपेयर टू जस्ट वन बर्ड फ्लाइंग अलोन. आपने गाड़ियों में भी देखा होगा ना, एरोडायनेमिक शेप आनी शुरू हो गई है ना, टू मिनिमाइज द रेजिस्टेंस टू द एयर, है ना. सो व्हाट इज द लेसन? शेयरिंग द सेम डायरेक्शन and working as a team get us to the destination quicker and easier. Students भी जब admission लेते हैं, है ना, तो they also they are also sharing the same direction. उन्होंने भी अपना कैरियर, उन्होंने भी अपनी लाइफ में जो है कुछ सक्सेस, कुछ अचीव करना है. They want to transform themselves, they want to learn many things, है ना. तो if they work as a team, then that can get to their destination quicker and easier.
and by helping ourselves the accomplishments are greater. जैसे मैं बच्चों को कहता हूँ, हमारे एक HOD हुआ करते थे, वो उन्होंने ये मतलब इनकलकेट की हम में ये हैबिट। वो कहते थे कि हमारा जो टी टाइम होता है आधे घंटे का, सब लोग कुछ ना कुछ एक छोटा मोटा आर्टिकल पढ़ के आओ एंड लेट अस शेयर दैट। तो उससे क्या होता था कि जब हम 7-8 लोग थे तो हर बंदा कुछ ना कुछ पढ़ के आया तो शेयर किया, तो विद इन हाफ एन आवर वो सारी जो है मतलब 7 जनों का जो लर्निंग थी, दे यूज्ड टू शेयर विद ईच अदर। तो सेम इज द केस विद द स्टूडेंट्स कि अगर उन्होंने कुछ टॉपिक्स करने हैं, कुछ करना है ना, तो अगर सब लोग कुछ ना कुछ पढ़ के आए एंड दे वर्क एज ए टीम, then they can transform themselves quicker. They can be more knowledgeable in a quick manner. Okay, so because they are sharing the same direction and if they work as a team, so they can help themselves. The greater the accomplishments are, greater. Yeah. So when a particular goose leaves the formation, what will happen? जब आप एक टीम का पहले पार्ट हो, उस डायरेक्शन का पार्ट हो, है ना, तो आपका एफर्ट भी कम लग रहा है। जब आप अकेले हो जाओगे फिर क्या होगा? व्हाट विल हैपन देन? ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाता है, बर्ड और मर जाता है। एफर्ट ज्यादा लगेगा, है ना। तो फिर इस टीचर का, इस बर्ड का क्या कोशिश होगी? उसकी कोशिश होगी कि मैं दोबारा ज्वाइन करें। हाँ, है ना। तो वही है, इफ यू आर ट्रेन्ड टू बी टीमेबल and you know the benefits of teamwork, then you will always be inclined to work in a team. So what this bird generally do, he quickly comes back to the formation to take the advantage of the flock's power in front of him. So what is the lesson? By staying in tune and united beside those who are going in the same direction, the effort will be less and it will be easier and pleasing to reach the goals, and everyone will be inclined to accept and give help. Now, आप लोग ये बात कर रहे थे पहले कि जो लीडर बर्ड होता है ना, वो उसको सबसे ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस टू द एयर मैक्सिमम होती है फॉर द लीडर बर्ड और मिनिमम होती है एट द लास्ट बर्ड, है ना। सो टीम वर्क में क्या होना चाहिए कि जो अगर कोई डिफिकल्ट काम कर रहा है तो वो मुश्किल काम किए जाए और जो इजी काम कर रहा है वो इजी काम किए जाए। विल द टीम वर्क देन? नो सर, इट वोंट वर्क, है ना। तो क्या होगा? Normally what happens कि this bird goes to the end of the V formation where the effort is minimum while another goose takes the lead. So what is the lesson? Okay, to share the leadership. There must be mutual respect between us all the time, sharing the hardest problems and tasks, gathering our abilities, combining our faculties, talents, and resources. Then, you know, when they fly, they always say quack quack, है ना, कुछ ना कुछ बोलते हैं आपस में। तो क्यों बोलते हैं? तो वो पंजाबी में बोलते ना, अल्लाह घेरी में सारे काम कर जाते हैं। हाँ, जोर लगा के हईशा बुड़क मारते हैं ना जब, तो एनर्जी आती है। बोली पावा, है ना, बोली बातें हैं स्कूल में, है ना, तो एनर्जी आ जाती है, मोटिवेशन मिलती है ना। सो व्हेन देयर इज अ करेज एंड एनकरेजमेंट, द प्रोग्रेस इज ग्रेटर, क्योंकि सब कुछ एनर्जी के साथ ही है। इफ यू आर मोटिवेटेड, इफ यू आर यू नो encouraged, है ना, तो प्रोग्रेस तो तब अच्छी होती है। And a timely word of encouragement always motivates, helps, and strengthens, and it produces best of the benefits. Okay, so teamwork gives you an opportunity to get motivated to give your best. If you are not working in a team, you will get very limited opportunities for motivation. Only your inner motivation will work. So this is another big advantage of working in a team, that you know, with this the progress is greater and it produces best of the benefits. Now
when a particular goose gets sick, is injured or gets tired, अगर कोई एक टीम मेंबर बीमार हो गया, उसको तब क्या करना चाहिए? सब लोग रुक जाएं कि उसको छोड़ के चले जाएं सब आगे? सब लोग रुक जाएं, आई गेस। तो सब लोग रुक गए तो काम बंद हो गया, फिर तो प्रोग्रेस होगी नहीं। छोड़ के सर, और तीसरी ऑप्शन दी है कोई? दो ही है। तीसरी आप बताओ ना। So to take him along. To take him along. एक बात तो है कि he must leave the formation because the team has to progress. But then there must be someone to help. Yes, that's good. Okay. So what is the lesson which we draw from here? Okay, let us stay beside each other no matter what the difference is, especially in times of difficulty and great challenges. आपने वो फिल्म आई थी ना कारगिल के ऊपर, लाइन ऑफ कंट्रोल, है ना? तो आपने देखा होगा कि जो मतलब वहां पे अगर किसी को गोली लगती है फौजी जवान को, तो ऐसा नहीं है कि उसको ऐसे ही छोड़ जाते हैं, उसके साथ कोई ना कोई होता है, या उसको वापस लेके जाते हैं, है ना, ताकि उसका इलाज हो सके। तभी फौज में ये कहा जाता है कि जो अपोजिशन में जो भी होता है, अपोनेंट होता है, कि बंदे को मारो ना, उसको इंजर करो, क्योंकि फौज का ये रूल है कि जो इंजर होगा उसके साथ 2 जने उसको वापस बेस कैंप पे लेके जाएंगे उसके इलाज के लिए। वो कहते हैं कि उससे आर्मी या फौज ज्यादा वीक होती है अगर आप उसको इंजर करते हो, है ना? तो ये जो है कि let us stay beside each other no matter what the differences are, especially in times of difficulty and great challenges. एक और आपके साथ मैं अपना एग्जाम्पल शेयर करता हूँ। ये कुछ सालों की बात है, मतलब मैं ना वो जो इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे परेड देखने का शौक भी है, कुछ रीइंफोर्समेंट भी ऐसे हुई कि मतलब जब व्हेन आई वाज अब्रॉड, तो वहाँ पे हमारे लिए ना 15th अगस्त एंड 26th ऑफ जनवरी यूज्ड टू बी वेरी स्पेशल डे। स्पेशल डे इसलिए होता था कि एक तो हमें छुट्टी मिलती थी एंड वी यूज्ड टू गो टू द एम्बेसी, अवर एम्बेसी। तो वहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के जितने स्टेट्स हैं उन सब की डिशेस वहाँ पे मतलब बनाई जाती थी। सो इट यूज्ड टू बी gala time for all of us to have a festivity kind of thing. तो तब से थोड़ा स्पेशल लगता है। तो जब ये परेड में देख रहा था, कुछ सालों की बात है, तो उसमें क्या था कि 2 मतलब आर्मी जवानों को मरणोपरांत जो है वो कोई परमवीर चक्र या वीर चक्र कुछ ऐसे मिले थे बिकॉज ऑफ देयर ब्रेवरी। तो वो मरणोपरांत मिले थे, तो वो जो था उनको मेडल तो उनकी विडोज को दिए गए। तो जब वो मेडल देते हैं, नॉर्मली सिस्टम क्या प्रैक्टिस क्या है कि साइटेशन पढ़ी जाती है उस जवान की बहादुरी के बारे में। तो मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि देखो जैसे साइटेशन पढ़ी जा रही थी उस जवान के बारे में, उन जवानों 2 जवानों के बारे में, तो मेरी आंखें भी नम हुई। और जब मैं उन विडोज को देख रहा था कि वेरी यंग विडोज हैविंग ए लॉन्ग लाइफ अहेड ऑफ देम, तो लगता था कि देखो मतलब ये हमें इतना ज्यादा वो फील हो रहा है, बट द काइंड ऑफ ग्रिट एंड कॉन्फिडेंस विच दोज विडोज वर शोइंग बाय कॉन्फिडेंटली स्टैंडिंग बिफोर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, तो वो एक बड़ी मतलब रिमार्केबल चीज थी। तो ये मैंने ही नहीं ऑब्जर्व किया, अगले दिन सरप्राइजिंगली आई रेड इट इन द न्यूज़पेपर, सम न्यूज़ जर्नलिस्ट रिपोर्टेड दिस कि व्हाई दिस काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस एंड ग्रिट, यू नो, फ्रॉम वेयर इट कम्स टू दीज द विडोज ऑफ आर्मी जवान्स, है ना। तो फिर वहां पता चला कि आर्मी में मतलब वो मतलब उनकी फैमिलीज को इतनी अच्छी सपोर्ट देते हैं, द होल आर्मी यूनिट,
because they work as a team. तो अगर if somebody is in a difficult time, ठीक है, so there are people to help them, ठीक है ना, and that's why army has got a different culture and all that. So it's again teamwork. We say let us stay beside each other, no matter what the differences, especially in times of difficulty and great challenges. जैसे हमारे भी जब हम अपने पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को सुनते हैं ना, तो पहले हमारी सोसाइटी बड़ी डिफरेंट हुआ करती थी कि गांव में अगर बारात है तो पूरे गांव में बारात आई, ये अकेले के घर में नहीं आई. अगर किसी के कुछ प्रॉब्लम आ गई घर में तो सबकी प्रॉब्लम है, वो एक जने की प्रॉब्लम नहीं है. दैट्स व्हाई लिविंग वाज मच बेटर and pleasing at that point of time, because of that teamwork which used to exist. So overall from this slideshow, what kind of lessons we draw? Okay, if we bond together and support each other, and if we make true spirit of teamwork regardless of our differences, we can rise to meet our challenge. And if we are aware of the feeling of sharing, अगर तो हमें teamwork का नहीं पता तो नहीं पता, but once we are trained to be teamable and we are aware of the feeling of sharing, then life will be easier and passing of years will be more fulfilling. So this is something which we must sensitize to our students about the importance of teamability. Okay, हम कहते हैं कि ये चीजें क्या हम करा सकते हैं, सिखा सकते हैं बच्चों को. तो मैं एक और आपके साथ छोटी सी एग्जांपल शेयर करता हूँ. वन ऑफ माई नीस, उसने IIM इंदौर से MBA किया, MBA PhD किया उसने. तो शी वॉज फ्रॉम जलंधर. तो जलंधर से जब वो इंदौर गई ट्रेन पे 5:30 कहती कि शाम को मैं पहुंची, और बाय 7:30 वो अपने IIM कैंपस में पहुंची. तो एवरीथिंग वाज वेल प्लान कि आपका ये रूम है, आपका ये इंटरनेट आईडी है, आपका ये लाइब्रेरी कार्ड, आपका एवरीथिंग वाज वेल ऑर्गेनाइज्ड. तो 8:30 वो कहती कि जब मैं मेस में खाना खाने गई तो वहां पे नोटिस बोर्ड पे लगा हुआ कि टुमारो यू हैव ए प्रेजेंटेशन ऑन दिस टॉपिक at 9 AM in the morning. Now he was kind of shocked कि अभी तो आई हूँ 1.5 दिन लगा के ट्रेन में, और सुबह मतलब मेरी प्रेजेंटेशन. बट इंटरनेट कनेक्टिविटी वाज देयर, लैब वाज देयर, सो ऑल रिसोर्सेज वर देयर. सो कहती कि 2-3 बजे तक मैंने वो अपनी प्रेजेंटेशन तैयार की. तो 3-3:30 सोई आके, तो सुबह 5 बजे कहती दरवाजा नॉक हो गया कि कम फॉर कंपल्सरी योगा क्लासेस. तो फिर 1-1.5 घंटा कहती योगा किया. नाउ इस सब का मतलब क्या है? Why I'm sharing this example with you and what this system says. इसका मतलब ये है कि इंस्टीट्यूशन का रोल होता है. जैसे ये लोग हैं, ये जो IIMs में पढ़ते हैं, तो हमें भी पता है कि the kind of corporate life they have, they travel from one place to another place very frequently. तो अगर उनको ये लगे भी अभी तो एक नई जगह पे गए हैं, वहां पे 2-3 दिन लगेंगे ये भी सेटल होने को, है ना, फिर उसके बाद काम शुरू करेंगे, तो फिर तो हो गया इनका काम. सो दे आर ट्रेन्ड लाइक दैट कि दे शुड, व्हेनेवर दे गो टू एनी प्लेस, दे शुड गेट टू देयर वर्क इमीडिएटली विदाउट वेस्टिंग टाइम इन सेटलिंग डाउन एंड ऑल. सो ये सारी जो स्किल्स होती हैं, जैसे टीमेबिलिटी की भी हम बात कर रहे हैं, इट्स पार्ट ऑफ दैट ओनली कि एज ए टीचर वी मस्ट क्रिएट दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट टू इनकलकेट दैट टीमेबिलिटी skills amongst our students. Another is preparation. We say that मतलब मैं 94 की जो बात करता हूँ, टीचिंग यूज्ड टू बी वेरी चैलेंजिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. चैलेंजिंग कैसे कि इतने अच्छे बच्चे होते थे, इतने मतलब वेल क्वालिफाइड एंड वेल रेड कि आप क्लास में जाओ, आपने टॉपिक लिखा, उसी पे डिस्कशन शुरू हो जाती थी, बिकॉज दे यूज्ड टू कम वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट. ओके, तो फिर जो पिच ऑफ लर्निंग है, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट देन कि जो आप
क्लास की जो आउटकम्स हैं वो बेटर हो जाते हैं विद दैट. सो वी नीड टू सेंसिटाइज अवर स्टूडेंट्स टू कम प्रिपेयर्ड फॉर द क्लासेस टू हैव बेटर लर्निंग एनवायरनमेंट. देन क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस कि बच्चों को मतलब मैं जब पढ़ाता हूँ मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ यू मस्ट आस्क व्हाई टू दैट, कि ये हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, व्हाई इट इज सो, है ना, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड दिस. ओके, क्योंकि अदरवाइज अगर कुछ पढ़ाया आपने इजी चुप करके पढ़ लिया वो फिर तो वो तो कोई बात ना बनी कि वट एवर इज बीइंग टॉट व्हाई इट इज लाइक दिस. ओके, सो दैट इज व्हाट द क्रिटिकल थिंकिंग इज. जैसे एक छोटा सा मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने देखा होगा कि जो हम +1 +2 में बच्चे पढ़ते हैं कॉमर्स में लड़ से, तो उसका काफी कुछ पार्ट जो है वो बीकॉम में भी पढ़ाया जाता है, और जो कुछ बीकॉम में पढ़ाया जाता है उसका कुछ पार्ट जो है वो एमकॉम में भी पढ़ाया जाता है. ऐसा क्यों है? ये डुप्लीकेशन क्यों है? विद द पैसेज ऑफ टाइम सर हम उन चीजों की डेप्थ जो है वो सीख जाते हैं. कभी कभी जब हम पहली बार उन चीजों को पढ़ते हैं हमें उनकी पेक्युलैरिटीज, उनकी एप्रीहेंशंस, उनकी कॉम्प्रीहेंशंस या उनकी जो वो सारी चीजों की पता नहीं होती, तब हम सिर्फ बेस ही सीख रहे होते हैं. फिर जब हम धीरे धीरे उनको पढ़ते हैं तो वो एडवांस लेवल पे उनकी सब चीजें हमें पता चलनी शुरू होती है. जैसे मैं ही हूँ, मैं टीचर ही हूँ अगर, तो जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो बहुत सारी चीजें मुझे तब समझ में आई. वेरी राइट. जैसे मैं आपके साथ शेयर कर रहा था या महाभारत अभी भी देखता हूँ, तो कितनी बार देख चुका, मेरे को हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है ना. तो वही यू ओन विद द थिंग्स, योर एप्लीकेशन पार्ट बिकम स्ट्रॉन्ग, है ना. तो वैसे करिकुलम के बारे में भी यही कहा जाता है कि 30% रेपिटेशन हैज टू बी देयर, है ना. सो अंडरस्टैंड द बिग पिक्चर एसोसिएटेड विद द थिंग्स, है ना, कि शैलो थिंकिंग नहीं, ट्राई टू सी द बिग पिक्चर. कि हम कहते हैं कि पेट्रोल डीजल महंगा क्यों महंगा है ना, उसका रीजन है कि इंडिया में अगर डायरेक्ट टैक्स लोग नहीं पे करते तो गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्स लगाया, है ना. तो बिकॉज द कंप्लायंस इज वेरी इजी, इफ पीपल हैव कंप्लायंस फॉर डायरेक्ट टैक्सेस तो इनडायरेक्ट टैक्सेस भी कम होंगे फिर तो, है ना. सो दीज थिंग्स में अंडरस्टैंड द बिग पिक्चर. डिस्कवरी प्रोसेस के हर एक उसमें कुछ ना कुछ नया, जैसे मैं आपको जो एग्जांपल्स दे रहा हूँ, जो पॉइंट्स, ये कुछ कोई नेट से उठाए हुए नहीं है. दीज आर माय ओन एक्सपीरियंसेस, है ना. बट आप लोगों के अपने एक्सपीरियंसेस होंगे रिलेटेड टू दिस, सो you can discover from this and you can have your own what we call it way of looking at things from this discovery process with your own examples, isn't it. Openness to peer learning process के student ऐसा नहीं कि जो teacher पढ़ा रहा है वही पढ़ना है. There should be collective learning, they should learn from each other. Collective learning should be promoted. Now coming towards the conclusions of my talk, आर्ट विदाउट रिस्क डज नॉट एग्जिस्ट. तो जो आर्टिस्ट होते हैं, आर्ट इज क्रिएटिव एंड अनकंट्रोलेबल. टीचिंग थ्रू पार्टिसिपेंट सेंट्रल लर्निंग प्रोसेस इज ऑल्सो एन आर्ट, बट इट्स मैनेजेबल एंड कंट्रोलेबल. हाउ? थ्रू सिस्टमैटिक प्रोसेस, प्लानिंग एंड डायरेक्शन. Critical factors for discussion-based interaction: questioning of the right kind to the right individual at the right time, listening actively, and responding. Coming to the last slide, qualities of an effective teacher, so that we have some time for discussion as well. Now, first is, I personally feel that, you must love your subject, you must love your profession, and you must love the role of your profession. क्योंकि एक टीचर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब वो क्लास में जाए तो उससे पॉजिटिव वाइब्स आए. पॉजिटिव वाइब्स तभी आती हैं इफ यू लव योर सब्जेक्ट, इफ यू लव योर प्रोफेशन एंड यू लव द रोल ऑफ योर प्रोफेशन. एंड दैट इज पॉसिबल ओनली जब हम कहते हैं मैं बनना तो जी इंजीनियर चाहता था, बन गया टीचर, बनना IAS चाहता था, बन गया टीचर, है ना. तो फिर वो पॉजिटिव वाइब्स नहीं आती. यू मस्ट अंडरस्टैंड, यू मस्ट लव योर सब्जेक्ट, यू मस्ट लव योर प्रोफेशन, ओनली देन द पॉजिटिव वाइब्स विल कम.
That is the first quality of an effective teacher. Secondly, respect the student. Great teachers, they know the hopes and the fears of the student. Okay, that is the second thing. Third is prepare thoroughly and protect the learning environment. Please don't go to the classes unprepared. To protect, you should always protect the learning environment. Fourth is commit the students into their learning and development. कि हमारा काम सिर्फ टॉपिक पढ़ाना नहीं है. Our, it is expected from us that we must motivate, we must inspire the students, we must persuade the student for their commitment towards better learning and development. Manage content as well as the process well. It's just content ही नहीं पढ़ना, process भी, उसकी process पे भी work करना. Great teachers, they work on the process as well. Create an environment where the student can take risk. Now you'll say कि ये risk क्या मतलब है कि student कोई कुछ भी बात कर ले. एक last example आपके साथ share करता हूँ. ये मतलब वही बहुत 15-20 साल पुरानी ये एग्जाम्पल है. मेरा एक कोलीग था, ही वाज फ्रॉम फिलीपाइंस, जब मैं आई वाज वर्किंग देयर इन विद द यूएन. तो वो एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट पेपर पढ़ाता था. तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग वे से ना वो एड्स को लेके जाना, तो बड़ी मतलब वर्ड ओवर जो एड्स, फेमस एड्स, जो अवार्ड विनिंग एड्स, तो वो मतलब हम देखा करते थे, उसके पास सब वो रिसोर्सेज हुआ करते थे. तो जैसे उस साल में मतलब जो एड मतलब टॉप 10 एड थी, इंडिया की भी एक एड थी उसमें, मतलब जो ना करेक्टर ऑफ द नेशन डिपिक्ट करती थी, मतलब वो दैट वाज द थीम. तो इंडिया की एड थी, वो फेविकोल की एड, वो है ना, एक वो ट्रक सा जा रहा है, उसमें बड़े सारे लोग बैठे हैं, आधे सो रहे हैं, आधे जाग रहे हैं, पर गिरता कोई नहीं है, फेविकोल का मजबूत जोड़, है ना. तो इंडिया इज ऑल्सो लाइक दैट, है ना, कि ह्यूज कंट्री मूव कर रहा है ना. तो उसको 3rd प्राइज मिला था. बट जो 1st प्राइज मिला था ना, वो मिला था एक जापानीज एड थी कि एक क्लासरूम है छोटे बच्चों का, केजी किंडरगार्टन स्टूडेंट्स. तो टीचर आती है, वो आके कहती है, अपना इंस्ट्रक्शन देती है कि टुडे यू ड्रॉ व्हाटएवर कम्स टू योर माइंड. तो ड्राइंग की क्लास होती है, तो कोई बच्चा मिक्की माउस बना रहा है, कोई डॉल बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है. लेकिन एक बच्चा है, वो शीट उठाता है, उसको ब्लैक कर देता है, मतलब ब्लैक शेडिंग उसकी कर देता है. एक और उठाता है, उसकी ब्लैक शेडिंग कर देता है. वो ऐसे ही करे जा रहा है. तो टीचर जब उसको सबको बच्चों को मतलब वॉक अराउंड करके देख रही है, तो उसको लगता है कि बाकी सब तो ठीक है, इसको क्या हुआ. तो पर उसको डिस्टर्ब बच्चे को कोई नहीं करता. इंडिया की तरह नहीं है कि उसका कान पकड़ा, उससे पूछा भी ये क्या वेस्ट कर रहा है, नॉट लाइक दैट. तो बड़ा क्विकली से ऐड चलती है, वो प्रिंसिपल को बुलाती है, वो डॉक्टर्स को बुलाती है, साइकोलॉजिस्ट को, पेरेंट, किसी को समझ नहीं आता कि ये बच्चे के माइंड में क्या चल रहा है, कि ये शीट उठा रहा है और ब्लैक किए जा रहा है ना. बट एवरीबडी वांट्स नॉट टू डिस्टर्ब द स्टूडेंट, बट टू सी कि व्हाट इज गोइंग थ्रू हिज माइंड. तो सब बच्चे करके चले जाते हैं अपना अपना कलरफुल कुछ ना कुछ, पर वो बच्चा लगा हुआ है. तो तभी ये स्टूडेंट, टीचर जो है, ये सोच रही है कि क्या हो रहा होगा इसके माइंड में. तभी वो उसके माइंड में आता है कि ये कहीं कहीं से पैचेस छोड़ भी रहा है शेडिंग के. तो मे बी वहां पे टॉयज पड़े होते हैं, जो पजल्स जो ज्वाइन करके कुछ बनती हैं. तो तभी बच्चा वो फिनिश कर देता है अपनी शेडिंग. तो वो सारे को जोड़ते हैं, तो एक वेल फिश बन जाती है. तो मतलब वो ग्राउंड में ले जाके सबको करती है, तो वेल फिश बन जाती है. तो मतलब स्लोगन वाज के बच्चे के माइंड में वेल फिश आई, तो उसने वो बनानी शुरू कर दी, है ना. तो व्हाट वाज द टैगलाइन ऑफ दैट एड? द टैगलाइन वाज कि प्रमोट क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन अमंग्स योर किड्स, है ना. तो वही कि जब हम रिस्क की बात करते हैं ना, कि क्रिएट एन एनवायरनमेंट वेयर द स्टूडेंट कैन टेक रिस्क इन टर्म्स ऑफ आइडियाज, रिस्क इन टर्म्स ऑफ पर्सपेक्टिव्स. ओके, then don't show them how competent or how smart you are. Your actions should speak rather than your words.
Okay, great teachers, they do it like this. And great teachers transcend the message. Try to develop yourself that kind of teacher that whatever you do, in the class, that message should be discussed outside the class as well. That believable attitude of heart along with good preparation that makes you an effective teacher. So that's all from my side. We have few minutes available with us if we can discuss few things. Yeah. जी थैंक यू सो मच सर फॉर दिस वंडरफुल सेशन एंड आई मस्ट से कितना इंटरेस्टिंगली ये सेशन जा रहा था कि एक भी पार्टिसिपेंट लाइक इट्स 5:15 की सभी पार्टिसिपेंट 2 बजे से लेके भी 5:15 बजे तक है आपसे जुड़े हुए हैं और जो आपने अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो शेयर करा जो आपने जो जिन विषयों पे जानकारी दी वो वास्तव में अद्भुत है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर आई रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट दैट इफ यू हैव एनी ऑब्जर्वेशन or any doubt or question, so you may ask to Professor Manjeet ji. House is open for all the participants. So it was great to listen to your experiences after so many. Sir, समय जरूर हो गया, but मन यही कह रहा कि आपको सुनते जाएं. Thank you. Yeah, I'm around. Let us discuss few things. जी. Yeah. सैटरडे का ये तो एडवांटेज है ना हमारे पास. जी जी. Participants are appreciating your session, sir. Thank you very much. So I request all the participants to switch your camera again for a group photograph, and after that for the formal vote of thanks, I would like to invite Dr. Mohan Singh ji. After the group photograph, all the participants please switch on your camera. अभी असली अटेंडेंस अब लगने वाली है सर. Done. Thank you. So for the formal vote of thanks, I would like to invite Dr. Mohan Singh ji from the participant. Over to Dr. Mohan Singh. Thanks a lot. Thanks a lot, Mohan sir. Thank you very much, Dr. Manjeet Singh ji. Very informative, very explained topic. You touched so many topics today. First of all, you told us that how to recover from this ongoing pandemic. Our economy is recovering slowly, but in K-shaped recovery, in which rich becomes rich and poor getting more poorer. Then 3 main points you touched, the 3 main incidents in the last 6 to 7 years which changed the face of our economy, which includes demonetization, GST and COVID-19. Then one thing you explained very much, but about the globalization, that what when we trace in the history of globalization, then we find that this is not the time in 1991 then first globalization take place. We find that there are many phases of globalization, and it was centuries ago. Perhaps when Columbus discovered India, and globalization in 1991 was the recent phase. In addition to the current phase of globalization, especially in the field of education sector, is taking place nowadays during this COVID pandemic, during this increasing use of ICT. 2 days back, we have had with us Ma'am Nauf Al-Marwai from Saudi Arabia. Now it is possible for we people to have different resource person from all over the world. Then in a second session, or say after tea time, you told us that about the classroom learning process. It is of 2 types. All of us know that lecture-based and discussion-based. But you in very good manner explained that how discussion-based classroom teaching is very good one. What are the challenges and what are the skills required for teachers, and what are the responsibilities and skills required for students also. In between the time, you gave an example of Ramanda, where you worked between 2002 to 4, that how Ramanda has grown in last few years and improved itself in ease of doing ranking,
and became Switzerland of South Africa. So thanks a lot, sir. Thanks on the behalf of UGC-HRDC-Bhagat Phool Singh Mahila Vidyalaya, on behalf of all the participants of this session and on my personal behalf. Thanks a lot, sir. Thank you. थैंक्स टू मोहन सिंगला जी ऑल्सो. बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती समय देने के लिए. थैंक यू. आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं और आशा करते हैं कि आपसे जल्द से जल्द ऑफलाइन मोड में मुलाकात हो सर. थैंक यू जी. बहुत बहुत धन्यवाद सर. नमस्कार. शुभ दिन. थैंक्स अ लॉट. आप सभी पार्टिसिपेंट का भी बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार. कल कब रहेगा? कल सर अवकाश रहेगा. थैंक यू सर. क्योंकि सर्दी ज्यादा बढ़ गई है. जी जी, बारिश का मौसम है सर. चाय पकौड़े का आनंद. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. Thank you, Pawan sir. Thanks a lot. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you.